Hi guys, how are you doing? Hope things are going on well from your side. Okay, that's fine. That's nice to see that you are learning regularly. These long videos are very important, and if you want to learn properly, if you want to understand the concepts of English properly, then you have to watch the videos full. ठीक है, अगर आपको सही जानकारी इकट्ठा करनी है तो एपिसोड्स को अंत तक देखें. ठीक है, सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ Ankur. Welcome back to the English classes, and I am here once again, and we are today once again going to study the topic the correct use of prepositions. ठीक है, we are once again going to study correct use of prepositions. Okay, तो फिर से इसी टॉपिक को पढ़ते हैं आज हम. Once again start this topic, correct use of prepositions. Prepositions नहीं, prepositions. This is the correct pronunciation. आपको मैं pronunciation भी बीच बीच में सिखाता हूँ. Although I have already uploaded the videos of learning pronunciation. अगर आप उस pronunciation series को practice करेंगे, then you can definitely make your pronunciation better. और कोई भी English speaking किसी कोर्स को ज्वाइन करने से नहीं आती है. It comes when you speak and speak. Okay, so for that you have to be an avid reader. आपको एक अच्छा रीडर होना चाहिए इंग्लिश का. You should be able to write properly, and then you should be able to speak. When you speak on a regular basis, जब आप रोज बोलेंगे, when every day you will speak in English, then you will gradually become better, because there is no shortcut. कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा जी. There are no shortcuts for speaking in English. You have to speak English every day. Speak and speak. Yes, come on. You can do it. I know that. So let's start this chapter today with correct use of prepositions. Now there are certain words or verbs and adjectives and जिनके बाद एक निश्चित तरीके की preposition use होती है. So let's start with पहला word है capacity. कैपेसिटी. ठीक है, पहला वर्ड है कैपेसिटी. तो जब कैपेसिटी वर्ड आता है वो किसी चीज के लिए कैपेसिटी यूज की जाती है, तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं. ठीक है, कैपेसिटी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कैपेसिटी शो करनी है तो फॉर लगेगा. फॉर नहीं, फॉर आर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है. तो हम क्या लिखेंगे? Example, I have capacity for working 16 hours a day. I have capacity for working 16 hours a day. तो capacity means क्षमता. तो क्षमता जब किसी की दिखानी है तो उसके बाद कोई फैक्ट मेंशन कर रहे हैं तो हम किस चीज का यूज करेंगे? विल बी मेकिंग यूज ऑफ द वर्ड फॉर. समझ में आया? क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे. जैसे अगर एक और सेंटेंस लिखें, शी हैज कैपेसिटी फॉर वर्किंग या स्टडीइंग लिख लो. Anything you can write, any one of these you can write. She has capacity for working or studying late night. She has capacity for working or studying late night. So capacity के बाद जब कोई fact mention करेंगे, so what will be using? Will be using for. समझ में आया? क्या यूज करते हैं? We use for. ठीक. अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, कंपटीशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा. तो समझ में है? कैपेसिटी जब किसी चीज की दिखानी है तो कैपेसिटी के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑलवेज फॉर प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड. नाउ सेकंड वर्ड इज कंपटीशन. कंपटीशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा. कंपटीशन. नाउ कंपटीशन वर्ड हैज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस. यानी कि there are two different kinds of prepositions used with the word
कंपटीशन या उसका कोई भी फॉर्म, कंपटीशन वर्ड का कोई भी फॉर्म जब यूज होता है तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस टू डिफरेंट प्रपोजिशंस आर यूज। जैसे अगर वर्ड कंपटीशन लिखा हुआ है, वर्ड कंपटीशन इज रिटन, तो कंपटीशन के बाद अगर पर्सन आ रहा है तो विद आएगा। अगर कंपटीशन वर्ड के बाद पर्सन आ रहा है तो क्या आएगा, और अगर थिंग आ रही है तो फॉर आएगा। थिंग का मतलब वस्तु नहीं है, थिंग का मतलब कोई इवेंट हो सकता है, किस चीज के लिए, और यू कैन से पर्पस। ठीक है, किस चीज के लिए, व्हाट इज द पर्पस, एम ऑफ दैट कंपटीशन। इफ दैट कम्स देन वी विल बी यूजिंग फॉर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई competed with Neeraj for the javelin throw। I competed with, किसके साथ कंपटीशन किया, पर्सन के साथ, नीरज के साथ। काहे के लिए किया, जेवलिन थ्रो। वो नीरज चोपड़ा नहीं भैया, आई कांट कॉम्पीट विद नीरज चोपड़ा, आई डोंट नो इवन द एबीसीडी ऑफ जेवलिन थ्रो, सीरियसली आई डोंट नो द रूल्स। यस, आई एंजॉय द जेवलिन थ्रो बिकॉज आई जस्ट एंजॉय सीइंग हाउ फार द एथलीट्स और दीज जेवलिन थ्रोअर्स थ्रो द जेवलिन, भाला फेंक इसको बोलते। बट नो, आई एम नॉट talking about competing with Neeraj Chopra, no guys, but we are studying prepositions। तो किसके साथ competition, नीरज के साथ, और किस चीज के लिए, जेवलिन थ्रो के लिए। तो पर्पस दिया है तो for, और पर्सन दिया हुआ है तो क्या यूज करेंगे, विल बी यूजिंग विद। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज होने वाली है, जो क्रिकेट लवर्स हैं, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो उसी के दो सेंटेंस हो जाए, न्यू ऑस्ट्रेलिया इज competing with India in border Gavaskar ट्रॉफी। ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया किसके साथ कंपीट कर रहा है, इंडिया के साथ। अब जब पर्पस के लिए लिखें, अगर इसी सेंटेंस को हम सिर्फ पर्पस के लिए लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इंडिया इज competing for border Gavaskar ट्रॉफी। तो किस चीज के लिए इंडिया कंपीट कर रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, ना ट्रॉफी, सॉरी, इंडिया इज कंपीटिंग फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ऑस्ट्रेलिया किससे कंपीट कर रहा है, इंडिया से। वैसे ही यहां पर था, मैं किससे कंपटीशन में था, नीरज से। तो जब कंपटीशन के बाद पर्सन किससे कंपटीशन हो रहा है, उसका फॉर्म कोई भी हो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ड कंपटीशन इज यूज्ड। तो जब किससे कंपटीशन हो रहा है, सो व्हाट वी आर सपोज टू यूज, वी आर सपोज टू यूज विद। और जब किस चीज के लिए हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द थिंग जिसके लिए कंपटीशन हो रहा है, सो हम क्या यूज करेंगे, विल बी यूजिंग फॉर। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, तो ये आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट से दैट आई डिड नॉट टेल यू अर्लियर, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट है, क्या है, डील। अगर डील का मतलब होता है किसी चीज में से डील करना। डील करना मतलब हिंदी क्या होगी डील की, द हिंदी ऑफ डील इज किसी चीज से संबंधित होना, है ना। तो डील के बाद क्या आता है, डील इज फॉलोड बाय प्रपोजिशन इन। डील के बाद कौन सी प्रपोजिशन आती है, डील के बाद प्रपोजिशन आती है इन। जैसे
he deals in business of ज्वेलरी। he deals, भैया बिजनेस की स्पेलिंग जो है ये नहीं होती है, बहुत से बच्चे ये लिखते हैं, लर्नर्स स्टूडेंट्स प्लीज डोंट राइट, इफ यू आर कमिटिंग दिस मिस्टेक प्लीज अवॉइड इट। बिजनेस वर्ड बना है बिजीनेस से, व्यस्तता, और बिजी की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बिजी, SY। तो जब हम बिजीनेस बनाएंगे तो Y चेंज हो जाता है I में, तो क्या बन जाती है, बिजीनेस। समझ आया? सो प्लीज डोंट राइट दैट। एंड ये वर्ड है, इट इज ज्वेलरी नॉट ज्वेलरी, प्लीज डोंट प्रोनाउंस इट एज ज्वेलरी, इट इज ज्वेलरी। क्या है ये वर्ड, ये वर्ड है ज्वेलरी नॉट ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं है, इट इज ज्वेलरी। ठीक, तो ही डील्स इन बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, या शी डील्स इन, डील के बाद कोई भी पर्पस आए, बिजनेस आए, शी डील्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। जैसे अगर टीचर के क्लास में कहता है, फॉर एग्जांपल टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास, किताब पेज 200 पे किताब खोलो। ठीक है, तो ओपन द पेज, क्या करते हैं, ओपन योर बुक ऑन पेज 5 और ऑन पेज 200। ठीक है, जो भी है, तो हम क्या करते हैं, लेकिन दिस इज द मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है मेन, कि किताब खोलने के लिए एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो ओपन योर बुक एट पेज 200, नॉट ऑन। ऑन का यूज गलत है। तो 200 पेज पे किताब खोलो, 500 पेज पे किताब खोलो, 10वें पेज पे किताब खोलो, तो किताब खोलने के लिए ओपन योर बुक एट पेज के लिए जब आएगा, इतने नंबर की पेज पे किताब खोलनी है, तो हम क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे, विल बी यूजिंग द प्रपोजिशन एट। ठीक है, हम एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। समझ आया? एक प्रपोजिशन छूट गई, डी की ही, जब डी के बाद पर्सन आता है तो हम क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। डील विद अ पर्सन, डील इन समथिंग, किसी चीज में, शी डील्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ही डील्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस, ही डील्स इन स्वीट शॉप। ठीक है, स्वीट बिजनेस। सो डील के बाद जब पर्पस आ रहा है तो इनका यूज होगा, एंड डील विद अ पर्सन और इन अ पर्पस और थिंग। ठीक है, इन अ पर्पस और थिंग, कोई पर्पस है, वस्तु दी गई है तो थिंग यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, शी डील्स, तो क्या यूज कर सकते हैं, शी डील्स विथ हर, शी डील्स विथ हर ब्रदर नाइसली। ठीक है, वो अपनी भाई से अच्छे से बिहेव करती है, तो शी डील्स विद हर ब्रदर नाइसली। और उसमें पर्पस में क्या था, शी डील्स इन स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल की चीजें बेचती है, तो शी डील्स इन स्पोर्ट्स मटेरियल। तो डी के बाद जब पर्पस या थिंग आएगी तो इन यूज करेंगे, पर्पस आएगा तो हम क्या यूज, सॉरी पर्सन आएगा तो विथ यूज करेंगे। डी के बाद जब पर्पस या थिंग आएगा तो इन यूज करेंगे, और पर्सन आएगा विल बी यूजिंग विथ। ओके, नाउ
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रहा, जीवन गाड़ी है समय पहिया, देख फूलों के मेले सारे झमेले, कितनी हसीन है ये दुनिया, ये रास्ता कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब मुझसे, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल, जीवन गाड़ी है समय पहिया, समझे? तो समय पहिया है, चल रहा है, तो उस पहिए को पकड़ लो, ठीक है। अब वर्ड है अगर जैसे अगर वर्ड दिया हुआ नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? निग्लेक्ट करना, अनदेखा करना, ठीक है। तो जब नेग्लिजेंट वर्ड जब आता है तो नेग्लिजेंट के बाद अगर काम की बात हो रही है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम वर्क, कि वो इस काम को निग्लेक्ट करता है, तो हम इन का यूज करते हैं। और अगर ड्यूटीज की बात आती है तो वो ऑफ का यूज होगा। जैसे नेग्लिजेंट इन वर्क और नेग्लिजेंट वो अपनी ड्यूटीज में नेग्लिजेंट है तो ऑफ आएगा, देन इट विल बी ऑफ। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, शी वॉज नेग्लिजेंट, अब अगर क्योंकि काम की बात कर रहे हैं तो शी वॉज नेग्लिजेंट इन कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट, तो उसको वो अपना काम करने में नेग्लिजेंट थी, यानी कि उसने निग्लेक्ट किया, अनदेखा किया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। और जब अगर क्या बोला है, अगर ड्यूटी की बात है, ठीक है, तो जैसे अगर ड्यूटी की बात है, मान लो कोई हाउस ले लें, हाउसेज होते हैं ना सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, स्पेशली स्कूल्स में, एमरल्ड हाउस इज नेग्लिजेंट ऑफ doing duty of डिसिप्लिन। तो नेग्लिजेंट के बाद जब ड्यूटी की बात आएगी, किसी तरीके की ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स ड्यूटी, ठीक है, तो जब किसी ड्यूटी की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। और जब कोई काम आएगा, कोई प्रोजेक्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट, सो व्हाट वी यूज in। समझ में आई? Have you understood? So in this way, keep learning prepositions. There are many prepositions or prepositional phrases which you need to know, which are asked in competitive examinations. Because not just here, not just at the school level, you might need them at the competitive level also. And of course, when you go further in future, for writing English correctly, you also need sound grammatical knowledge. यानी कि अगर आपको इंग्लिश कहीं पर भी सही से लिखनी है तो नॉलेज तो होनी चाहिए, सही तो नॉलेज होगी तभी तो आप इंग्लिश सही से लिख पाएंगे। अदरवाइज हाउ विल यू बी एबल टू राइट इंग्लिश करेक्टली? यू विल मेक मिस्टेक्स, देन प्रमोशन रुकता है, स्पेशली व्हेन यू वर्क इन गुड कॉर्पोरेट और प्राइवेट एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में तो मोस्टली हिंदी में वर्क होता है, but only in North India, not everywhere. So pay attention on the lessons of English. Keep learning with me. Hope you enjoyed the lessons. Keep coming back for more. Bye.